Okay, so Assalamu alaikum. In this video, we'll talk about a lot of important topics. That is the biliary operators, the bile duct relations, the Calvert's triangle, Courvoisier's law, and the pancreatic ducts. So, first of all, let's talk about the extrahepatic biliary operators. So, this is the operators or a system through which bile is produced by the liver, and then it's transported by the way of this operators towards the gallbladder, and then upon requirement that bile gets drained into the duodenum. And this system, which is responsible for all this transport of bile between the liver and gallbladder and between the gallbladder and the duodenum, is called as extrahepatic biliary apparatus. और इसमें कौन कौन से स्ट्रक्चर्स इंक्लूडेड होते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल दीज आर द लेफ्ट एंड राइट हेपेटिक डक्ट्स, जो कि लिवर से लेकर आते हैं बाइल को, एंड देन द कॉमन हेपेटिक डक्ट, जो कि दोनों मिलकर कॉमन हेपेटिक डक्ट बना देते हैं, एंड देन द गॉल ब्लेडर, द सिस्टिक डक्ट, जो कि डक्ट होती है गॉल ब्लेडर की, एंड देन दे बोथ कंबाइन टू फॉर्म द बाइल डक्ट और द कॉमन बाइल डक्ट. सो दिस होल इज कॉल्ड एज द एक्स्ट्रा हेपेटिक biliary apparatus. Okay, then we talk about another thing, that is the spiral valve of Hester. अच्छा, कहा जाता है जो सिस्टिक डक्ट है, जो बेसिकली बाइल को ड्रेन करवा रही है फ्रॉम द gallbladder towards the from the gallbladder towards the bile duct. That duct is quite, you can say, spirally arranged, और जिसको म्यूकस मेम्ब्रेन होती है, जिसको म्यूकस लाइनिंग होती है, that is in the form of folds, and due to that folded appearance of the inside of the cystic duct, we also call it as a spiral valve of Hester as well. Okay, then we talk about the relations of the bile duct. अक्सर आ जाता है एग्जाम में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. तो जस्ट लाइक वी हैड द सेवरल पार्ट्स ऑफ द पोर्टल वेन, हमने कहा था कि जैसे वो फर्स्ट पार्ट ऑफ ड्यूटनम के बिहाइंड से गुजरती है, तो हम उसको सुप्राड्यूटनल, रेट्रोड्यूटनल और इंफ्राड्यूटनल पार्ट में डिवाइड कर देते हैं. इन द सेम वे जो हमारे पास बाइल डक्ट है, इसकी भी फॉर्मेशन के बाद ही बिहाइंड द फर्स्ट पार्ट ऑफ ड्यूटनम ही मूव कर रहा है. तो इन द सेम रिलेशन वी डिवाइडेड इनटू अ सुप्राड्यूटनल पार्ट, अ रेट्रोड्यूटनल पार्ट, एन इंफ्राड्यूटनल पार्ट, एंड अ इंट्राड्यूटनल पार्ट, बिकॉज वी नो दैट द बाइल डक्ट विल बी कंबाइनिंग विद द पैंक्रियाटिक डक्ट टू फॉर्म द हेपेटोपैंक्रियाटिक एम्पुला ऑफ वेटर, जो कि फिर बाद में यू कैन से मेजर ड्यूटनल पेपिला ऑफ द ड्यूटनम में एंटर हो जाते हैं एट द सेकंड पार्ट ऑफ ड्यूटनम. तो इन द सेम वे, इन दैट वे वी हैव फोर पार्ट्स ऑफ ड्यूटनम: द सुप्राड्यूटनल पार्ट, द रेट्रोड्यूटनल पार्ट, द इंफ्राड्यूटनल पार्ट, and the intraduodenal part of the bile duct, the common bile duct, right? So let's talk about the various relations of its parts. So the first part is the supraduodenal part of the bile duct. उसके anterior relation will find the liver, as you can see. उसके posterior relation will find the portal vein, जो कि हमें यहाँ पे नजर नहीं आ रही, but right here you can appreciate it. So anterior relation में the liver, posterior relation में the portal vein, and towards the left will be found the hepatic artery. So just like we saw the relations of the portal vein, the same way we have the relations of the bile duct as well. So this is the relation of the first part of the bile duct, that is the supraduodenal part, and we have anteriorly the liver, posteriorly we have the portal vein, and to the left we have the hepatic artery. The next part is going to be the retroduodenal part, and as the name indicates, इसके एंटीरियर रिलेशन में क्या नजर आएगा? फर्स्ट पार्ट ऑफ ड्यूटनम. पोस्टीरियर रिलेशन में हमें नजर आएगी इंफीरियर वेना कैवा, पोर्टल वेन नहीं, क्या नजर आएगी? इंफीरियर वेना कैवा. एंड टुवर्ड्स द लेफ्ट अब हेपेटिक आर्टरी नहीं, अब क्या है यहाँ पर? गैस्ट्रोड्यूडनल आर्टरी ऑन इट्स left, right? So the relation of the second part of duodenum is such that we have anteriorly the first part of duodenum, we have posteriorly the inferior vena cava, and we have towards the left the gastroduodenal artery. Okay, right. So the next thing, that is the in infraduodenal part, or the part that is present below the first part of duodenum, उसके क्या रिलेशन होते हैं? तो कहा जाता है कि जस्ट बिलो द फर्स्ट ऑफ duodenum, बेसिकली जो हमारे पास बाइल डक्ट होती है, वो हेड ऑफ पैंक्रियास के अंदर, ग्रूव के अंदर से गुजरी होती है. सो ऑन द पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ द हेड ऑफ पैंक्रियास, उसके ऊपर पार्ट में देयर इज अ ग्रूव फॉर द पैसेज ऑफ द बाइल डक्ट, एंड दैट इज वेयर द बाइल डक्ट विल बी हैविंग इट्स कोर्स. The infraduodenal part of the bile duct will be passing through the, you can say, यही इसका इंटीरियर रिलेशन है infraduodenal part का, that will be passing the by groove in the head of the pancreas. और posterior relation में again we have the inferior vena cava. अच्छा, फिर बात करते हैं about the intraduodenal part of the बाइल डक्ट. हमने कहा कि इसका जो कोर्स होता है विद इन द ड्यूटनम, थोड़ा ऑब्लिक सा कोर्स होता है इसका, एंड जस्ट सून इट आफ्टर इट एंटर्स द ड्यूटनम, इट कंबाइंस विद द पैंक्रियाटिक डक्ट टू फॉर्म द हेपेटोपैंक्रियाटिक एम्पुला या एम्पुला ऑफ वेटर, एंड आफ्टर विच इट विल बी पासिंग थ्रू अ एम्पुला कॉल्ड एज द मेजर ड्यूटनल एम्पुला, जो कि 8 to 10 सेंटीमीटर डिस्टल टू द पाइलोरस ऑफ द स्टमक ऐसे प्रेजेंट होता है. सो यहाँ पे आगे उसकी टर्मिनेशन हो जाती है किसकी? बाइल डक्ट की. तो ये हो गए उसके सारे रिलेशंस. अच्छा, फिर बात की जाती है कि देयर आर सर्टन स्फिंक्टर्स एसोसिएटेड विद द बाइल डक्ट. एक स्फिंक्टर होता है जो एट द एंड ऑफ बाइल डक्ट में नजर आता है, जो कि होता है स्फिंक्टर कोलेडोकस, बिकॉज हम कोले का वर्ड हमेशा किस लिए यूज़ करते हैं? हम लोग यूज़ करते हैं इसको फॉर द गॉल ब्लेडर, राइट? सो स्फिंक्टर कोलेडोकस इज द स्फिंक्टर एट द एंड ऑफ द कॉमन बाइल डक्ट, एंड वी हैव द स्फिंक्टर पैंक्रियाटिकस, which is the sphincter at the end of the pancreatic duct. Then we have a common sphincter called as a sphincter of Oddi, right? Or the sphincter ampullae, जो कि होती है at the end of the hepatopancreatic ampulla. अच्छा, then we talk about one more thing, that there are certain clinical conditions associated with the gallbladder. इसको हम कहते हैं Courvoisier's gallbladder, right? या फिर Courvoisier's law. ये law ये कहता है कि if the gallbladder या bile duct is blocked by any extrinsic cause, for example if there is a tumor of the
pancreas, head of pancreas, because we know that at a certain location bile duct में pass करना होता है through the head of pancreas. So if there is a tumor of the head of pancreas, तो वजह से क्या होगा, bile duct block हो, जो जितनी bile होगी वो accumulate हो जाएगी within the gallbladder, इस वजह से उसकी क्या हो जाएगी, dilatation हो जाएगी. So whenever there is the extrinsic cause of blockade of the gallbladder or the bile duct, that will result in the dilatation of the gallbladder. लेकिन अगर हम देखेंगे जो bile duct है वो intrinsically block हो रहा है, लाइक कोई gall stones हैं, कोई cystic stones हैं, जिसकी वजह से वो internally block हो रही है, तो उस केस में dilatation नहीं होगी gallbladder की, बिकॉज वहाँ पे fibrosis हो जाएगी ड्यू टू कि वहाँ की blood supply भी यू कैन से कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगी, वहाँ पे fibrosis हो जाएगी. तो जब भी extra hepatic या extra यू कैन से extrinsic cause होगी blockade की, तो वहाँ पे क्या होगा, dilatation होगी gallbladder की. जब भी कोई intrinsic cause होगी या stones होंगे तब वहाँ पे dilatation नहीं होगी. दिस इज कॉल्ड एज अ Courvoisier's gallbladder और सिंपली द Courvoisier's law. अच्छा, फिर कंडीशन होती है, कंडीशन तो खैर नहीं, एक स्ट्रक्चर या इसको स्पेस कह सकते हैं, ट्रायंगुलर से स्पेस बनी होती है बिलो द लिवर, दैट इज कॉल्ड एज कैलोट्स ट्रायंगल. एंड इसकी बाउंड्रीज इंपॉर्टेंट होती है, काफ़ी बड़े एग्जाम में आ जाता है कि कैलोट्स ट्रायंगल की बाउंड्रीज और कंटेंट्स लिखें. सो दिस ट्रायंगल इज बेसिकली बाउंडेड बाय सिस्टिक डक्ट, राइट, द सिस्टिक डक्ट, द कॉमन हेपेटिक डक्ट, राइट, एंड द सेगमेंट 5 ऑफ द राइट हेमिलिवर ऑफ द लिवर. मुश्किल सा नाम है, खैर यू कैन जस्ट आप याद रख सकते हो कि बेसिकली राइट लोब ऑफ लिवर का इन्फीरियर बॉर्डर इसका एक पोर्शन बना रहा होता है. So cystic duct, the common hepatic duct and the segment 5 of the right hemiliver, ये तीनों चीज़ें मिलकर बना रही होती हैं कैलोट्स ट्रायंगल. एंड अगर से कंटेंट्स की बात की जाए, वी हैव द सिस्टिक आर्टरी, वी हैव द सिस्टिक लिम्फ नोड एंड वी हैव ऑटोनॉमिक फाइबर्स रीचिंग द गॉल ब्लैडर. बस इतना पता नहीं चाहिए. तो दिस इज ऑल अबाउट द कैलोट्स ट्रायंगल. फिर बात की जाती है अबाउट द डक्ट्स ऑफ द पेंक्रियास. हम कहते हैं कि पेंक्रियास इज हैविंग 2 डक्ट्स, राइट. एक होती है इसकी मेन पैंक्रियाटिक डक्ट और एक होती है इसकी एक्सेसरी पैंक्रियाटिक डक्ट. द मेन पैंक्रियाटिक डक्ट इज बेसिकली स्टार्टिंग एट द लेवल ऑफ टेल एंड ऑल द वे टुवर्ड्स द हेड मूव करती है, टुवर्ड्स द राइट मूव करती है, एंड देन आफ्टर इट कंबाइंस विद द कॉमन बाइल डक्ट एट द लेवल ऑफ हेपेटोपैंक्रियाटिक एम्पुला. इट विल बी ड्रेनिंग इन द मेजर ड्यूडनल पेपिला एट द लेवल ऑफ सेकंड पार्ट ऑफ ड्यूडनम, राइट, 8 to 10 सेंटीमीटर डिस्टल टू द पाइलोरस. और हमें कहते हैं कि इसकी जो ट्राइब्यूटरीज होती हैं वो वी शेप, यू कैन से वी शेप पैटर्न में या एक्यूट एंगल पे इसमें एंटर हो रही होती हैं, विच वी कॉल इट एज अ हेरिंग बोन पैटर्न एज वेल. So this is all about the main pancreatic duct or the main pancreatic duct of Wirsung, इसको Wirsung भी कहते हैं. Then we have an accessory pancreatic duct जो कि basically head of pancreas के लेवल पे स्टार्ट होती है और कम्युनिकेट भी करते हैं मेन pancreatic duct के साथ, लेकिन ये you can say independently drain हो रही होती है in the second part of duodenum by the minor duodenal papilla, right, at the level of minor duodenal papilla, और इसको हम accessory duct कहते हैं. एंड ये तकरीबन 6 to 8 सेंटीमीटर डिस्टल टू द पाइलोरस सेंटर हो रही होती है. एंड अगर बात की जाए इसकी लोकेशन तो इट विल बी क्रेनियल टू द मेजर वन एंड इट विल बी वेंट्रल टू द मेजर वन. और हम कहते हैं कि जो पैंक्रियास होता है ये डेवलप होता है बाय द वेंट्रल एंड डोर्सल पैंक्रियाटिक बड्स, राइट. एंड इन द सेम वे दैट इज द रीजन व्हाई इट हैज़ 2 डक्ट्स, द मेन वन एंड द डोर्सल वन, sorry, the accessory one, right. So that was all about some of the important topics of the gallbladder, pancreas, etc., etc. So thank you so much for listening. Allah Hafiz.